Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Presentation is visible to all. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Now visible. Yes, ma'am. Now it's Yes, visible. ma'am. Okay. So today's topic is medial and collateral ligament injuries in the knee joint. तो मैं अभी नी जॉइंट ही कवर कर रही हूँ, जिसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा है मेनिस्काई के बारे में. And today's topic medial and lateral collateral ligament, and the next will be your ACL. Okay. So as you know, the main stabilizers of the knee joints are your dynamic and statics, including all ligaments and capsule, all the things in the knee joint, because it's a very complex joint. So we are going one by one. So next is the medial and lateral collateral. What is that? The medial collateral ligament, that is called MCL, and LCL, lateral collateral ligament, serve as mediolateral stabilizers of the knee and provide some degree of rotational instability. All are providing, especially the torsion forces, जो torsion force होता है आपका and rotational force होता है, ये सारा आपका जो नी के ligaments होते हैं, कैप्सूल होता है, फ्लूइड होता है, ये सारा आपका ये मूवमेंट ही कवर करता है. सारी स्टेबिलिटी आपको इन्हीं स्ट्रक्चर से मिलती है. सो अगर कोई भी एक स्ट्रक्चर डैमेज है या abnormality है, so your knee pain will be there and the other biomechanical faults will be there. Okay, so injury to the ligaments occurs when external forces applied to the knee overwhelm the integrity of the ligaments, either in isolation or in combination with other structures, that is other ligaments, bone or menisci. जो मैं पिछले टर्म से पढ़ा रही हूँ कि कभी ये मोस्ट ऑफ द केसेस सब एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं. आइसोलेशन में बहुत ही कम ऐसा आपको देखने को मिलेगा. अगर आप इनकी वो देखोगे, रीऑकरेंस देखोगे, तो आपको इसमें सबसे आइसोलेशन में तो बहुत ही रेयर मिलेगा. स्पेशली एमसीएल. MCL is always associated, MCL and menisci are always associated with the other structures, not in a single manner. So, what is etiology? MCL sprains occur as a result of an excessive valgus load or external tibial rotation. Just imagine कि अगर rotational force अगर कौन से movement में लोअर लेग हो, इधर आपका अपर लेग हो, मींस थाई बोन से रिलेटेड हो या नीचे टिबिया और फिबुला से रिलेटेड है, कौन सा ऐसा मूवमेंट होगा जब ये स्ट्रेच होगा या सबसे ज्यादा लोड पोजीशन पे होगा, चाहे वो LCL होगा या फिर MCL होगा. तो ज्यादातर जो MCL होगा तो ऑब्वियसली उसके जो ऑपोजिट मूवमेंट होगा उसमें ही चांसेस ऑफ MCL ज्यादा होंगे. सेम LCL में भी उसके ऑपोजिट मूवमेंट होगा, दैट इज वेरस स्ट्रेस. और दी MCL के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो लोड होगा, दैट इज एक्सेसिव वेलगस लोड. So these injuries typically occur in contact and collision sports, that is football and soccer, or in sports where high torque forces can be generated about the knee, that is the skiing and ice skating. स्कीइंग में और आइस स्केटिंग में आप सबसे ज्यादा देखो, आपका लोअर बॉडी से स्टेबिलिटी उनको प्रोवाइड करनी होती है अपने लोअर बॉडी को, जो भी एथलीट है, एंड लोअर बॉडी के थ्रू ही अपर बॉडी मूवमेंट होगा. वो स्पीड उनकी लोअर बॉडी के थ्रू ही आएगा, और कब उन्हें एक्सेलरेट करना है, कब उन्हें डिसेलरेट करता है, इस पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि उनका एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन कंपेयर टू एक्सेलरेशन में आपको देखने को मिलेगा कि
अगर फोर्सेस अप एंड डाउन हुए या एक फोर्स हाई हुआ और एक फोर्स लो हुआ तो चांसेस ऑफ इंजरीज सबसे ज्यादा होंगे. नाउ व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी इंक्लूडिंग रिस्क फैक्टर्स एंड प्राइमरी प्रिवेंशंस. Ligament sprains are most common type of knee injury. The MCL and ACL are the most commonly sprained knee ligaments. Okay, the MCL is injured in at least 42% of knee ligament injuries, with isolated MCL injuries accounting for 29% of ligamentous knee injuries alone. जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको सिंगल इंजरी, सिंगल स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम उसमें दिखता है, रेयर ही होता है, स्पेशली एमसीएल एंड एलसीएल. सिर्फ एमसीएल और एलसीएल का मिलना ऐसे 10 to 20% ही अप्रोक्स होता है, बट दीज आर एसोसिएटेड ईदर विद द मेनिस्काई और ईदर विद द एसीएल. In young athletes, females were found to have a higher rate of MCL injury. MCL injuries is also commonly seen in contact sports such as American football, soccer, hockey and rugby. फीमेल में क्यों होता है हायर रेट MCL का? एनी आइडिया? ठीक है, आप लोग ही पता करके बताना, मुझे तो पता ही है. क्यों ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी सबसे ज्यादा फीमेल ही क्यों ज्यादा अफेक्टेड होती हैं कंपेयर टू मेन? ऑल्दो अभी तो एपिडेमियोलॉजी में तो सभी ऑलमोस्ट ही सिमिलर है, बट जब हम पढ़ते थे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे ज्यादा फीमेल आती थी. क्यों? ओस्टियोपोरोसिस. हाँ, ओस्टियोपोरोसिस के कारण. अच्छा, और कोई रीजन? मैम ड्यू टू ब्रॉडर पेल्विक रीजन के कारण. बॉर्डर पेल्विक रीजन के कारण भी होगा, और जो वेट बियरिंग बोन का जो वेट बियरिंग एरिया होता है, दैट इज द मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, इफ यू रिमेम्बर. यस मैम, लार्ज साइज में. हाँ, वो भी एक रीजन होता है कि अगर सबसे ज्यादा जो वेट होता है वो आपका मीडियल कोलेटरल लिगामेंट में होता है, उससे उसके बाद में जो ब्रॉडर पेल्विस होता है दैट विल प्ले अ रोल. एंड अगर मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल में सबसे ज्यादा लोड होता है तो ऑब्वियसली उधर के स्ट्रक्चर्स हाई लोड पर होते हैं. That's why the females were found to have a higher rate of MCL injury if it is happening alone. माइक अनम्यूट हो गया है भाई. Okay. MCL injuries are more common than LCL injuries because of the loading capacity. Isolated LCL injuries are rare, accounting for only 2% of knee ligament injuries. LCL injuries are more commonly associated with more profound injury to the knee involving the posterior lateral corner structures. जब लोड पे ज्यादा आएगा या रोटेशनल स्टेबिलिटी कम होगी तब चांसेस ऑफ LCL ज्यादा होंगे. Knee collateral ligament injury prevention has been studied in American football players. Hinged knee braces have been found to have been found to help reduce the rate of MCL injuries in American football linemen, linebackers, and tight ends. Okay, so you can prevent the injuries. जैसा हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंजरी प्रिवेंशन में पढ़ते हैं, उसमें एक पॉइंट आता है प्रिवेंटिव मेजर्स और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. तो आप चांसेस ऑफ इंजरीज को रिड्यूस करने के लिए आप जो गार्ड्स होते हैं, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, वो सारे यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंजरीज. ओके, pathoanatomy and physiology. The MCL is composed of a superficial and a deep layer. The superficial layer runs from just posterior to the medial femoral epicondyle down 6 centimeter beyond the medial tibial plateau. The deep layer is a thickening of a joint capsule itself. It is composed of the meniscofemoral and meniscotibial components.
So isolated MCL injuries typically involve the proximal fibers of the superficial layer. The MCL is extraarticular. Thus, in isolated MCL injuries, medial knee swelling may occur, but intra-articular effusion will be absent. The LCL starts proximally just posterior to the lateral femoral condyle and attaches distally to the proximal portion of the fibula in a conjoint fashion with the biceps femoris tendon. Isolated LCL sprains occur as a result of excessive varus loading of the knee. Eversion of the LCL of the fibula usually signifies a concomitant posterolateral corner knee injury. Collateral ligament sprains are graded. सारे ligaments जो injuries होती है, जो sprains होते हैं, that are in the graded form. First grade is the pain along ligament, no instability or gapping of the joint with stress testing. So in the grade 1, there will be minimal swelling, minimal pain, no stability, and no difficulty in movement, and no loss of range of motion. Okay. What is grade 2? That is partial gapping, 5 to 10 millimeter of joint with stress testing at 30 degree of knee flexion. Whenever you are giving a stress test to that particular joint, that will be painful. And you can do in the grade 2, not in grade 1. Grade 3, wide gapping, that is greater than 10 millimeter of joint at 30 degree of knee flexion, no end feel. You will not feel any kind of end feel. So clinical features, what are the clinical features? The clinical history of an isolated medial or lateral collateral ligament injury can generally be treated non-operatively. So initially the knee may be swollen and painful, which may limit range of motion. The quadriceps muscle may become inhibited, secondary to pain and swelling. During the subacute phase, pain and swelling resolve, the ligamentous laxity improves. इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, the quadriceps muscle may become inhibited, secondary to the pain and swelling. इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को? कौन सी मसल इनहिबिशन में, कौन सी एक्टिवेशन में, क्यों क्वाड्रिसेप्स मसल क्यों इनहिबिट हो जाएगी? मैम क्वाड्रिसेप्स का फंक्शन ही एक्सटेंशन करना है, तो जब किसी भी एथलीट को मीडियल कोलैटरल इंजरी होगी, लिगामेंट की इंजरी होगी, तो वो बिकॉज ऑफ पेन वो इतना मूवमेंट नहीं करेगा, तो एक तरीके से उसका मसल का वो एट्रोफी कंडीशन में जाएगी. No, atrophy is the big term. Inhibition is different. What is inhibition and activation? You will learn more about the inhibition and activation in the kinesiology taping. So इसीलिए मैंने ये word अभी और explain करने के लिए बोला है. Inhibited जैसे agonist antagonist is okay, but why quadriceps muscle is going inhibition? और कोई मसल क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि that is the primary muscle of your knee joint. Okay, flexion and extension is the main movement, primary. Okay, so अगर knee joint में कोई भी anomaly है, कोई भी structural anomaly है या कुछ भी painful thing है, तो उसको protective phase में सबसे पहले quadriceps, that is the main muscle, quadriceps and hamstring. तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी स्ट्रक्चर में, तो suddenly that muscle will go in the inhibition to protect himself. जैसे कोई भी पेनफुल स्टिमुलस आया आपके पास, ठीक है, सडनली यू विथड्रॉ योर हैंड, ओके, तो आप तुरंत अपना हाथ पीछे खींचते हो टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. सेम थिंग हैपन with the quadriceps muscle or hamstring muscle. Whatever structure in the knee joint is affected due to any injury, any pathology, that muscle will go into the inhibition to protect their self. Later on, why we started isometric in every condition, in every situation, not only for knee joint. सबसे पहले आप क्यों देखते हो कि हर मसल के लिए जो
ठीक है, कुछ भी हुआ, अगर रेंज ऑफ मोशन भी लॉस है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलो आइसोमेट्रिक स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं छुपी बैठी है, अपना मूवमेंट करने के लिए रेडी नहीं है, इनहिबिशन में है, तो वो सोच रही है कि मैं और मूवमेंट करूंगी तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग कि इनहिबिशन में चली जाती है। इट्स अ काइंड ऑफ कि मसल अपने आप को एक प्रोटेक्टिव फेज में ले जाती है, दैट इज इनहिबिटेड। सो यू हैव टू एक्टिवेट दैट पर्टिकुलर इनहिबिटेड मसल। मैम तो बहुत आप बार उसको ऐसे मैम बहुत बार जैसे एक वर्ड आता है प्रोटेक्टिव स्पाज्म की कंडीशन, जो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, तो वो भी सिमिलर है इन एक्टिवेशन से। हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट स्पाज्म इज द involving the soft tissue structures at that particular area, but this is the about muscle which is leading your movement of that particular joint. Okay, so soft tissue spasm में क्या होगा, you will give the soft tissue manipulation, you will give the heat, you will give the cold packs, and that in the 24 hours or 48 hours that will become normal. ओके, मसल स्पाज्म की बात करें अगर हम, तो अगर मसल इनहिबिटेड है, जब तक आप उसे एक्टिवेट नहीं कराओगे वो वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आएगी। ओके, दिस इज द टर्म इनहिबिशन। इनहिबिशन, द मसल इज लूजिंग हर, मतलब द काइंड ऑफ लूजिंग अ मेमोरी ऑफ मूवमेंट। इसीलिए हम स्टार्टिंग में तो उसका मूवमेंट एक्टिवेट कराते हैं, लेटर ऑन वी डू दी प्रोप्रियोसेप्शन। क्यों करते हैं हम? इसीलिए करते हैं कि पहले तो आप मसल को एक्टिवेट करा दो, उसके बाद उसका जो भी ब्रेन से सेंसेशन लॉस हो जाता है, काइंड ऑफ री एडुकेशन, मसल कंडीशनिंग एंड री एजुकेशन पढ़ाया था मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ रिहैब में। तो ये सारी चीजें हम एक ओवरऑल थिंग में करते हैं। क्या पर्टिकुलरली पहले हम लोकलाइज ट्रीटमेंट करते हैं, आफ्टर दैट व्हेन वी आर गोइंग टू द फर्दर स्टेज इन अ जनरलाइज्ड टर्म, देन वी यूज द प्रोप्रियोसेप्शन एंड ऑल अदर थिंग्स। ओके ओके यस मैम, मैम। एक तरह का एक एक्टिव एक्टिव इनसफिशियंसी नहीं हो जा रहा है मसल का? एक्टिव इनसफिशियंसी, हाँ कह सकते हो आप, इनसफिशियंसी हो रहा है, बट दिस इज अबाउट द इनहिबिशन। क्योंकि अगर अभी जैसे वो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की बात हो रही थी, अगर एक मसल मेन अगर आपकी एगोनिस्ट है, अगर वो इनहिबिट हो रही है, तो लोड किस पे जाएगा? आपका मूवमेंट तो नहीं है, ऐसा रेंज ऑफ मोशन तो लॉस होगा ही होगा, बट उसके साथ साथ क्या है, ऐसा तो नहीं है आप बिल्कुल नॉन एम्बुलेटरी हो जाओगे या आपका पेशेंट बिल्कुल ही एम्बुलेशन उसका खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। then your antagonist will work more and that will become the overactive या overfire, and again the continuous using of that antagonist muscle will lead to the overuse injury. So see the biomechanics, how it affecting from the joint to the primary muscle to the antagonist muscle, and that will leading to again the overuse injury. So again, if your antagonist is affecting more, then the accessory muscle of that particular joint that is becoming affecting, वो भी affect होना start हो जाएंगी, like your glutes muscle है, आपका calf muscle है, वो सब involve होना शुरू हो जाएगा। तो this is the biomechanics, means मैकेनिकली कैसे एक सेगमेंट से अगर आप चेन वाइज भी कनेक्ट करेंगे तो एक चेन, इस चेन से एक सेगमेंट से दूसरा सेगमेंट कैसे इफेक्ट हो रहा है। सो फर्स्ट गो विद द इनहिबिशन एंड एक्टिवेशन, और कौन सी मसल ओवर फायर है, कौन सी मसल अंडर फायर है, यू हैव टू चेक इट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द ग्रेड। ओके यस मैम। यस मैम। Okay. So next is during the subacute phase, pain and swelling resolve the ligamentous laxity and that is improved. Progression through rehab process will parallel these movements. Return to play can be estimated as follows. If there is a grade 1 injury, you can expect the RTP in 10 days. If there is a grade 2, you can expect the RTP 20 days. And if there is a grade 3, then approx 60 days and more than 60 days. Okay. Collateral ligament injuries can be associated with cruciate ligament sprains, meniscal tears, that is called the unhappy triad.
capsular avulsion injuries, fractures or bony contusions, patellar dislocations, and complex multi-structure injuries occurring along the corner of the knee. So this will be there, effusion will be there, synovitis will be there. If there are three structure involved in the knee joint, that is called the unhappy triad. What is that? Is also known as the terrible triad or O'Donoghue triad. It involves full or partial tears of the ACL, MCL, and medial meniscus. Combined injuries may require operative repair to stabilize the knee. Failure to recognize these more complex injuries can lead to chronic instability, repeated soft tissue injury, and ultimately post-traumatic arthritis. So now we will go through with the assessment protocol. History, mechanism of injury. Did the injury occur with twisting or cutting or with a blow? And what is the location of impact? So the most important thing in the mechanism of injury, the more accurate you can go with the diagnosis. If you are sitting in the ground, if you are watching the athlete continuously and suddenly the athlete falls and you are watching the athlete continuously, it will be easy for you to make your diagnosis in the correct way so that your treatment plan works accordingly and the timing of the recovery will be low. So it's very important to watch always your athlete during the injury. कैसे वो गिरा, वो आएगा, आप हिस्ट्री पे तो पूछोगे ही, बट इट्स अ बेटर वे टू वॉच द एथलीट. जब भी आएगा पेशेंट और प्लेयर या फॉल हुआ है, कुछ भी हुआ है, जस्ट आस्क द पेशेंट और एथलीट, did the injury occur with twisting, or have you heard the sound of popping, anything sound is there, or cutting, or with a blow, or there will be a direct impact, and what is the exact location of the impact. The next point is the ability to continue with participation in activity immediately after injury. This is a very big task because if the match is happening there and there is the injury on the ground and you will get only 2 to 3 minutes to check the injury, then you will be instructed yes or no, the player will play or not. Sometimes you will say no, player cannot play, but the player himself or herself will say that no, I will play, I will play the further matches at the same time, same match. So it is very important to watch to make your diagnosis in the shorter time. Location of the swelling and bruising and time course of swelling. तो आपको swelling देख लेना है, उसका location check कर लेना है, if there is any bruising or discoloration, ecchymosis, and time course of the swelling. कितना time के लिए swelling है, on and off period है, और activity के साथ बढ़ता है, उसके बाद reduce हो जाता है, that time course of swelling. Then exacerbating और alleviating factors, उसका क्या relieving factor है, उसका क्या aggravating factors है, ये भी आपको check करना होगा. Mechanical symptoms such as instability or a locked joint, ये भी आपको check करना है because it will reveal the severity of the injury. Then neurovascular symptoms that will check on your neurological assessment. And physical examination, observation and inspection of the joint for obvious deformity. Then inspection and palpation of joint, assess effusion and tenderness. Palpation is the last thing in the your assessment. Never do palpation in the first point or second point. Always remember, don't aggravate, don't exacerbate her injury, his injury by touching the particular area. There can be a stress fracture. So don't palpate, first assess all the things like observation, inspection, and the palpation will be your last thing.
Active and passive ROM of the hip, knee and ankle, as I told you earlier and many times, the proximal and distal joint range of motion. Valgus and varus stress testing of the knee at 30 degrees to isolate stress to collateral ligaments. Valgus and varus force जो मैंने आपको elbow joint के लिए and it was similar for the knee joint also. स्टेबिलाइजिंग हैंड आपका अपर सेगमेंट पे होता है, मूविंग आर्म आपका लोअर सेगमेंट पे होता है. देन you have to put a pressure valgus or varus according to check the structure. आप मीडियल स्ट्रक्चर चेक कर रहे हो तो उसको वेल्गस फोर्स देना है, या लेटरल स्ट्रक्चर चेक कर रहे हो तो उसको वेरस फोर्स देना. ठीक है. देन grade 1 injury, if there is a grade 1 injury there will be a firm end feel. If there is a grade 2 injury, firm end feel with minor opening of the joint. If you will check the joint line, from the joint line you will check the minor opening of the joint with the firm end feel. If there is a grade 3 injury, there will be no end feel because the stability is almost nil. So wherever you will move the joint, the joint will be movable and you will found no end feel. So valgus and varus stress testing at 0 degree, so you will found a lack of firm end feel in this position indicates injury to the collateral ligament plus additional ligamentous structures such as cruciate ligament or corner injury. That is, the corner injury is about to say like posterior aspect of the particular joint. Either it is lateral epicondyle or the medial epicondyle of your femur and the uppermost part of the tibia. The neurologic and vascular examinations of lower extremity, जो भी आपका पूरा neurological involvement है, that is including your dermatome and myotome, you can check by that. Gait, the ability to bear weight, which type of gait the person or athlete is showing. The functional assessment, ambulation may be limited secondary to pain and swelling. The patient may also report knee instability with ambulation. The instability is meaning like वो बोलेगा कि नहीं मेरे को लॉकिंग हो रहा है, मेरे को कुछ अटक रहा है, कुछ मेरे को अबनॉर्मल लग रहा है, माने मेरे को बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है. तो वो इंस्टेबिलिटी भी शो करेगा कि नहीं मैं अगर खड़ा हो रहा हूँ या खड़ा हो रही हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी देर बाद गिर जाऊंगी. So that is your knee instability with the ambulation. As the condition improves, the range of motion and gait normalizes. So next step will be your diagnosis and imaging. Radiographs, that is in the AP and lateral view, are generally ordered to assess for fracture. Stress radiographs are completed with valgus stress at 20 degrees of flexion and can elucidate more severe injury. Okay, stress fracture can be in the tibial plateau also, subchondral bone also. So there will be stress injury. The MRI has an 86.4% sensitivity and accuracy in identifying an MCL injury and to identify the grades of MCL injury. USG is a quick and cost-effective way to assess the collateral ligaments. Then rehabilitation management and treatments. अभी तक अगर किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो तो मैं आगे रिहैब पर जाऊं. एनी डाउट अभी तक किसी को? नहीं. मैम ग्रेड 1 में लिखा था, मैम ग्रेड 1 में लिखा है कि फिल्म एंड फील, तो इसको कैसे करेंगे, समझेंगे? मैंने प्रैक्टिकल क्लास लिया था जो लास्ट क्लास बिफोर लॉकडाउन, उसमें मैंने एनफील के बारे में बताया था शायद कि अगर आप आगे पढ़ोगे तो उसमें एनफील होगा. माने जब आपका जब आप कोई भी टेस्ट कर रहे हो, सपोज एंटीरियर रॉड टेस्ट ही कर रहे हो, जब आप उसको अपनी तरफ पुल कर रहे हो नी जॉइंट को ही, तो एक टाइम में आपको एक जो लास्ट मूवमेंट होगा ना वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा. सिंपली जितना आप मूव कर रहे हो जो उसका एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें आपको firm end feel आएगा. दैट इज द नॉर्मल. firm end feel इज ऑलवेज नॉर्मल.
एंड फील मीन्स जितना डिस्प्लेस होना चाहिए जॉइंट को, देयर इज अ गैप ना, जितना आप उसको मूव कर सकते हो। अगर आप उसको मूव कर रहे हो, आई थिंक 6 मिलीमीटर, Yes, जब हम ma'am. एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट करते हैं तो उसका जब Yes, ma'am. ऊपर की तरफ मूव करते हैं इन रिस्पेक्ट टू फीमर, तो उसका 6 मिलीमीटर का गैप होता है। ठीक है, अगर 6 मिलीमीटर बियॉन्ड है तो फिर टेस्ट पॉजिटिव होता है। एंड जब आप 6 मिलीमीटर का गैप आप क्लियर कर रहे हो ना, अपनी तरफ खींच रहे हो ना, अगर आपको कुछ भी फील नहीं होता है और आपको लगता है कि ये तो मेरे पास ही चला आ रहा है, नहीं तो मैं जितना पुल करूंगी ये उतना पुल होता जा रहा है, दैट इज द नो एंड फील। और जब आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, नॉर्मली कर रहे हो, मूवमेंट इजी है, कोई भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके मूवमेंट में, या आप मूव कर रहे हो वो उसी डायरेक्शन में एग्जैक्टली जैसे मूव होता है नॉर्मल जॉइंट वैसे मूव कर रहा, और यू कैन कंपेयर टू द अदर साइड ऑल्सो टू चेक द एंड फील। तो जब आप फील करोगे तो आपको फर्म एंड फील होगा। एट द एंड में जो आपको फीलिंग आता है ना जॉइंट के बीच में मूवमेंट का, दैट इज फर्म एंड फील। कभी बोनी Okay, एंड ma'am. फील होता है, 3-4 Yes, ma'am. टाइप्स के एंड फील होते हैं। कभी कभी आपको लगेगा ना कुछ बोनी, अगर वहां पर लूज बॉडीज है, सपोज अगर नी जॉइंट में कोई लूज बॉडी है और आप मूव करने का कोशिश कर रहे हो तो वो आपसे मूव ही नहीं होगा। माइंड मतलब 1 to 2 मिलीमीटर मूव होगा, उसके बाद आपको लगेगा कुछ अटक रहा है। और इवन प्लेयर और एथलीट जो होगा जिसके ऊपर भी आप टेस्ट कर रहे हो वो बोलेगा नहीं इससे ज्यादा मूव नहीं हो रहा, मेरे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, दैट इज द बोनी एंड फील। ठीक है, तो फर्म एंड फील नहीं होगा। नो एंड फील इज लाइक आप मूव कर लो जॉइंट को जितना मूव करना है, आपको कोई भी एंड फील नहीं होगा, बिकॉज वो स्टेबल ही नहीं है। उसके सराउंडिंग्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सही होंगे, उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होगा, दैट इज होल्डिंग द जॉइंट कंप्लीटली, तो वो मूव ही नहीं होगा। तो नो एंड फील उसमें आएगा जब वो स्ट्रक्चर्स होंगे नहीं, उनको स्टेबल नहीं करा होगा अगर जॉइंट को, तो आप जिस भी डायरेक्शन में उसको मूव करोगे वो मूव हो जाएगा, देयर विल बी नो एंड फील। ठीक है, एंड फील आप पढ़ लेना, आप गूगल पे डाल के भी पढ़ लोगे आपको पता चल जाएगा, बिकॉज ये मैनुअल थेरेपी में यूज होता है बहुत ज्यादा एंड फील। Yes, मैम, आ गया, अच्छे से आ गया मैम। आपने बताया था लास्ट टाइम हाँ, प्रैक्टिकल। मैंने प्रैक्टिकल्स में बताया था क्योंकि मैं टेस्ट कर रही थी, मैंने तभी बताया था। एनी अदर डाउट? ओके, so rehab management and treatments. The acute injuries are generally managed with weight bearing as tolerated, and there will be first line of treatment will be your price therapy. Bracing of the joint may be performed initially depending on degree of instability or presence of valgus and varus angulation of the knee joint. If you are checking the alignment of your lower body, and if you are checking the affected leg with the contralateral leg, if you are watching the any anomaly, any misalignment, the knee is moving more towards medial line of the body, knee is moving more towards the outer part of the away from the midline of the body, so you can give the alignment through the braces. And the price therapy, that is the protect, rest, ice, compression, elevation principles are employed initially along with the early restoration of the joint movement. Protect in the sense जो भी protective equipment है that can be applied. Next is the quadriceps and hamstring strengthening exercises are progressed from isometric to open chain isokinetic exercises as tolerated depending on the severity of the injury. Then aerobic exercise is resumed as soon as tolerated, but not in the first week or after 5 to 6 days. It is always after 1 week, depending on the assessment, depending on the severity of the injury and the rate of recovery also. The next one is the once pain is reduced and strength is 80% of the contralateral side, closed chain strengthening exercises are initiated. As joint stability normalizes, neuromuscular agility training is initiated in preparation for RTP. So, goal-oriented rehab program for isolated collateral ligament sprain in athletes. ये जो rehab
program है, that is also a sample rehab program, and this is particularly for the MCL and LCL, not including your ACL and the menisci. If there is involvement of the your ACL and menisci, especially your medial meniscus, please assess your athlete and then go for the rehab plan. So what is for the LCL and MCL is the initial treatment will be apply ice with compressive rep for 20 minutes and repeat every 3 to 4 hours for the first 24 to 48 hours. That include your RICE therapy. Apply minimally restricted lateral hinge braces in the grade 2 or 3 injuries. Dispense crutches, allow weight bearing as tolerated. Then subsequent treatment, begin active ROM exercises in cold whirlpool at least twice daily. Begin SLR and electrical muscle stimulation if available. Otherwise, you can go with the SLR exercises only. Maintain general conditioning with upper body ergometer or swimming. लोअर बॉडी मूव नहीं कर सकता बट अपर बॉडी मूव कर सकता है, सो आप उसके अपर बॉडी एक्सरसाइजेस आप इनिशिएट करा सकते हो. और समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर किसी को लोअर बॉडी प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग चल रही है, पूरी टीम ट्रेनिंग कर रही है और आपको लगता है कि नहीं 2-3 दिन की बात है, सो अलाउ हिम और हर फॉर द अपर बॉडी ट्रेनिंग, ओके, और स्विमिंग. Then goal 1 is walking unassisted without a limb. So discard crutches and start re-educating to the athlete. Continue ROM, isometric strengthening and conditioning exercises. Then goal 2 is the 90 degree of knee flexion. Then begin stair climber and bicycle ergometer with seat high. Gradually lower the seat according to the condition of the athlete day by day. Then begin isotonic progressive restrictive exercise for quadriceps and hamstring, and it is supplemented with isokinetic exercises if available. isokinetic तो हर जगह नहीं होती है, so accordingly आपको isotonic ही progression में डालना होगा. Okay, continue ROM and conditioning exercises. Then what would be goal 3? That is the full knee motion. Begin running and functional exercise program. For example, first is jog 1 mile, then 5 successive 100-yard sprints at half speed. That is your 50% of speed. Then 5 successive 100-yard sprints at 3/4 speed. That is 75%. Then 5 successive 100-yard sprint at full speed. मतलब इंटेंसिटी जो होगी एथलीट की उसे आपको ग्रेजुअली बढ़ाना है इफ यू आर प्रिपेयरिंग एन एथलीट फॉर आरटीपी. देन 5 zigzag sprint at half speed, that is improving or testing your agility. Then 5 zigzag sprint at full speed after 2 to 3 days. Then other agility drills, जो भी आपकी other agility drills हैं according to the game, जिस टाइप का भी गेम है उसके हिसाब से करा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैरियोकास. देन कंटिन्यू कंडीशनिंग प्रोग्राम, वट एवर दी लोअर बॉडी ट्रेनिंग इज देयर यू कैन कंटिन्यू विद दैट. देन गोल 4 विल बी कंप्लीट इंटायर रनिंग प्रोग्राम इन 1 सेशन. पहले आप उसको बाउट्स में कराएंगे, दैट इज लाइक रनिंग करा दिया, उसके बाद रेस्ट है 2-3 घंटे का, उसके बाद उसका जो दूसरा सेगमेंट है आप वो करा सकते हैं, लाइक उसका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, जिम पार्ट करा सकते हैं, उसके बाद आप रेस्ट देकर उसको एजिलिटी प्रोग्राम करा सकते हैं. देन आफ्टर जब उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो उसका सारा एक्टिविटी जैसे वो नॉर्मल एक्टिविटी करता था उसको वैसे ही कराना है, ठीक है, इन 1 सेशन ओनली. मे रिटर्न टू कंपटीशन if athlete has minimal pain, full ROM and 90% of normal strength. Continue to use brace for all sports participation for remainder of the season, for that particular remainder of the season. ऐसा नहीं उसको लाइफ लॉन्ग ही ब्रेस सपोर्ट लगा के खिला रहे हो, ठीक है, फिर वो क्योंकि वो बस अभी आरटीपी कर रहा है, जस्ट रिटर्न टू प्ले है इसलिए. ओके, दिस विल बी योर रिहैब प्रोग्राम. Then what would be your the surgical indications? किस किस कंडीशन में कौन से टाइप का ऑपरेशन आप परफॉर्म करवा सकते हैं, करवा ही सकते हैं, आपको नॉलेज होगी.
ठीक है, बाकी तो ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम है, वही करेंगे। सो इफ देर इज presence of intra-articular ligamentous entrapment, if there is a large bony avulsion, if there is a associated tibial plateau fracture or subchondral fracture also, if MRI finding of complete tibial side avulsion is there in athletes, presence of anteromedial rotational instability or presence of valgus instability in 0 degrees of flexion is an underlying valgus knee alignment. So there can be an acute repair. Okay, if there is combined with anterior cruciate or other ligament reconstruction, if the examination under anesthesia shows valgus laxity in 0 degree of flexion, then there will be a delayed repair. Then combined with any repair, if local tissue is deficient, then there will be augmentation, a procedure called augmentation. Symptomatic chronic valgus laxity, there will be reconstruction of that particular part. The chronic valgus laxity and valgus bony alignment, then there will be distal femoral varus osteotomy. So this will be your surgical procedure. And after surgical procedure, you can continue with the post-operative rehab plan. So this was all about your medial and lateral collateral ligament injuries. So the other topic will be your ACL injury in the next class, so that we will complete with the knee joint, the typical knee joint. Any other doubt related to meniscus injury, related to medial and lateral collateral ligament injuries? If you have any doubt, you can ask. मैम इसमें आपने बताया था कि जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट इंजरी होती है वो मोर कॉमन होती है फीमेल्स में, तो उसका पहला रीजन था कि ब्रॉड पेल्विस, और सेकंड रीजन था कि बिकॉज उसमें वेट बेयरिंग मीडियल एपिकॉन्डाइल में ज़्यादा होता है। तो ऐसा तो मेल्स में भी होता है कि जो मीडियल एपिकॉन्डाइल मीडियल साइड होता है ऑफ द नी, उसमें वेट बेयरिंग ज़्यादा होती है। उसमें भी ज्यादा होती है, बट इन फीमेल में इसलिए चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज उनकी एक्टिविटी, उनका जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो कंपेयर टू मेन बहुत कम होता है। तो जब भी ये एजिलिटी जो ड्रिल्स होती है ना, या गेम में इंटेंसिटी जो हाई होती है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रेंथ ऑल्सो द चांसेस ऑफ इंजरीज मोर इन द मीडियल साइड। लाइक मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट ही क्यों इन्वॉल्व होता है? अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर अनहैप्पी ट्रायड भी होता है, जो मैंने भी बहुत केसेस में देखा है, उसमें एसीएल के साथ साथ एमसीएल और मीडियल मेनिस्कस ही इन्वॉल्वमेंट होता है। फीमेल में होता ही होता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि जैसे अभी मैं रिहैब प्लान भी पढ़ा रही हूँ और सारे प्रोटोकॉल वही यूज होते हैं। भाई रिहैब प्लान सबके लिए सेम होगा, ऐसा फॉर फीमेल और मेल के लिए अलग अलग नहीं आता है। बट कभी कभी ऐसा होता है जब वो प्रॉपर आरटीपी भी कंप्लीट हो जाता है, फिर भी चांसेस ऑफ री इंजरी इज मोर इन फीमेल कंपेयर टू मेल बिकॉज द लैक ऑफ स्ट्रेंथ। उनका स्ट्रेंथ उतना नहीं होता है, दे आर वेरी लाइक, अगर 20 प्लेयर्स हैं तो उसमें से 2 या 3 ही इतनी सिंसियर होंगी जो पर्टिकुलरली जो आप दोगे वो करेंगी। और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एवरी टाइम यू आर वॉचिंग दी एथलीट आप रिहैब प्लान बना के दोगे, क्योंकि आपके पास और भी प्लेयर्स हैं। उसमें से कुछ अगर सिंसियर होंगे तो करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो लैक ऑफ स्ट्रेंथ होगा, और एजिलिटी तो उतना ही करना है जितना सबको करना है। सो दिस इज द रीजन ऑल्सो। एंड डिफरेंट गेम्स में, डिफरेंट स्पोर्ट्स में, व्हेन यू आर लुकिंग द साइकोलॉजी ना, साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, और नी इंजरी इज द इंजरी विच हैपन मोर इन दी ऑल स्पोर्ट्स। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही स्पोर्ट में होता है। एंड किसी को भी लगता है कि नी इंजरी नहीं हो मुझे, ना बैक इंजरी हो। बैक इंजरी इन द सेंस दी स्ट्रेस फ्रैक्चर, जिसमें 6 मंथ का कंप्लीट रेस्ट होता है। तो ये सब बहुत फियर भी होता है प्लेयर्स में। उन लोगों को लगता है, कई प्लेयर्स को मैंने देखा है नी इंजरी हो गया उसके बाद वो पूरा डिप्रेशन में ही चले जाते हैं, उनको कोप अप करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारे फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी चीज, बहुत पुअर फैमिलीज से बिलोंग करते हैं एथलीट,
कम लोग होते हैं जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो न्यूट्रिशन लेवल होता है वो भी बहुत लो होता है, उनको प्रॉपर डाइट भी नहीं होता है। कई प्लेयर्स को मैंने ऐसे देखा है कि जब हमारे कैंप्स लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कभी खाना नहीं खाया है, इस तरह से वो लोग इनटेक होता है उन लोगों का। तो हमें भी पता चलता है उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कि ऐसा है जब आप इस फील्ड में आओगे ना, स्पोर्ट्स के फील्ड में आओगे, बहुत रूरल एरिया से प्लेयर आते हैं बाहर, उनके पास ना उतनी फैसिलिटीज हैं ना इक्विपमेंट्स हैं, उसके बाद भी तो ये सारे, दिस इज अ कंबाइंड होल फैक्टर्स इन्वॉल्विंग ऑल द थिंग्स इन द पर्टिकुलर। कोई एक रीजन नहीं होता है, बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें आपकी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें आपका न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपकी ट्रेनिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को नॉलेज ही नहीं है, वो ट्रेनिंग करे जा रहा है, और नई नॉलेज है, अच्छा ठीक है मैं रनर हूँ, मैं स्प्रिंटर हूँ, वो लोअर बॉडी पे ही वर्क करे जा रहा है, बट बायोमैकेनिकली उसका अगर अपर बॉडी मूव नहीं करेगा तो लोअर बॉडी में भी स्ट्रेंथ या स्पीड कैसे आएगा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स कि एक एज अ कंबाइंड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, जो उनको इंजरी से भी रिलेट करते हैं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करते हैं। तो दीज आर दी फैक्टर्स बायोमैकेनिकली जो हमारे पास फैक्टर है। और अगर आप किसी भी एकेडमी में, किसी भी टीम में, किसी भी उसमें काम कर रहे हो, तो आपको हर चीज को देखना पड़ेगा, हर एक्सपेक्ट पे आपको देखना पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि नहीं ये दिस इज नॉट माई पार्ट, आई कैन नॉट लुक इन टू इट। तो सारे फैक्टर्स हैं, अगर आप एक एक फैक्टर इन्वॉल्व करोगे, तो अगर आप उस पे काम करोगे और 10% भी इफेक्टिव है, तो दैट विल improve your healing also. If you are boosting a athlete, if you are giving a psychological मतलब आप उसको दे रहे हो, एक एनहांस कर रहे हो उसको साइकोलॉजिकली, दैट इज द इफेक्टिव एंड द रेट ऑफ रिकवरी विल बी मोर। नहीं कुछ नहीं हुआ है, आप स्ट्रेंथनिंग करो, जस्ट आपको स्ट्रेंथनिंग करना है, कुछ नहीं करना है, एंड यू विल प्ले द सेशन, यू विल प्ले द होल सीजन, आपके मैचेस मिस नहीं होंगे। बाकी आप एथलीट की विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है, हाउ द रेट ऑफ रिकवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर एथलीट। अगर आप मेहनत करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, देन दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स। Yes, ma'am. ओके, और कोई डाउट? सी अगर मैं जो जो चीजें बताती हूँ ये थ्रू अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी ये सब चीजें पता नहीं थी। जब मैं भी ऐसे ही बुक पढ़ती थी और वहां जाती थी, तो ऐसा फील होता था कि नहीं ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, बट वो आपको वहां तो आपको नहीं बोलना है ना कि मैंने नहीं पढ़ा। ओके ओके हाँ ऐसा है, फिर आप उसको रीड करो। सी आप जैसे नैन्सी आपने एक वो भेजा था, वीडियो भेजा था, आई थिंक आपको ग्रुप में शेयर करना चाहिए सबको, कि Okay, ma'am. एज अ फिजियो भी आप भी, ऐसा नहीं है कि आपने बैचलर्स कर लिया या मास्टर्स कर लिया सो यू हैव लर्न एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। बहुत टाइम होगा ऐसा है कि आपके पेशेंट्स और आपके एथलीट और आपके प्लेयर आपको बहुत कुछ सिखाते हैं रिगार्डिंग टू योर सब्जेक्ट ऑल्सो, एंड रिगार्डिंग टू अदर थिंग्स ऑल्सो, हाउ टू मैनेज दी थिंग्स, दिस इज योर एक्सपीरियंस। इसीलिए इसमें जो चीजें लिखी होती हैं और मैंने जो चीजें एक्सपीरियंस की हैं वो मैं मिक्स करके बताती हूँ, सो दैट अगर आपको कभी फील्ड में जाना है, सपोज अगर किसी को भी स्पोर्ट्स में आगे जाना है, तो ये सब चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी, तो नई नहीं होंगी चीजें, बिकॉज मैंने बहुत फेस करी ये चीजें, नई चीजें की मेरे को कुछ भी आइडिया ही नहीं होता था कि इस केस में करना क्या है, बट लेटर ऑन आई लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो। मैंने उन्हीं से सीखा, अपने सीनियर से एक दो चीजें पूछी, बाकी जब मैं अप्लाई कर रही थी तो मैं थी और मेरा एथलीट था, और उसे प्रिपेयर करना था फॉर आरटीपी। एक हफ्ते बाद मैच है, हाउ टू प्रिपेयर योर एथलीट, दैट इज द बिग टास्क, एंड इफ शी और ही विल प्ले द मैच सक्सेसफुली, दैट इज योर बिग अचीवमेंट। ज्यादा नॉलेज हो गई नहीं? No, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, so I'm winding up the class. Notes you have, and next class the topic will be your ACL. Okay. Okay, ma'am.
आफ्टर दैट आई विल चेक कि कितना और सिलेबस रह गया है, क्योंकि एक दो चीजें हैं जो कॉलेज खुलेंगे मैं तभी बताऊंगी। बाकी टॉपिक्स में फिनिश कर देती हूँ। बाकी आपको सेकेंड कौन सा वो है यूनिट, कौन सा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट वाला, वो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो? प्लीज प्रिपेयर बाय योरसेल्फ, ठीक है? सेकेंड ईयर में पढ़ा है आप लोगों ने, यस मैम, ठीक है? फिजियोलॉजी। मैम बस एक ओके। चीज़ बस पूछनी थी, बस एक हम्म। चीज़। मैम नॉर्मली जो जॉगिंग होती है वो इंड्योरेंस के लिए करते हैं। हम्म। एंड्योरेंस के लिए मतलब कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस आप प्रिपेयर कर रहे हो अपनी बॉडी की, इट्स अ काइंड ऑफ वार्म अप, हो ना? ओके। ओके ओके मैम। जब आप स्प्रिंटिंग और उसके लिए कर रहे हो ना, जॉगिंग इज अ काइंड ऑफ वार्म अप फॉर रनिंग और स्टार्टिंग ऑफ एनी एक्टिविटी, अ काइंड ऑफ वार्म अप। मैम और कभी कभी ट्रेनिंग सेशन में देखते हैं कि जो एथलीट होता है वो बैकवर्ड रनिंग करता है, तो उससे क्या हेल्प मिलता है? बैकवर्ड रनिंग कम्स अंडर एजिलिटी प्रोग्राम। ओके मैम, ओके। और अगर आप किसी की ट्रेनिंग प्रोग्राम देख रहे हो, फर्स्ट चेक कि उसका स्पोर्ट्स क्या है, मतलब वो किस पर्टिकुलर स्पोर्ट में खेलता है। जब भी आप किसी का भी कुछ देख रहे हो तो उससे और आपको पता चल जाएगा कि, क्योंकि हर गेम की एजिलिटी प्रोग्राम्स अलग अलग होते हैं, ठीक है? हॉकी का अलग होगा, क्रिकेट का अलग होगा एंड फुटबॉल का अलग होगा। सबका एजिलिटी प्रोग्राम अलग अलग होता है, लाइक हाउ टू पास गोल, हाउ टू बैट, हाउ टू गोल, हाउ टू रन एंड शार्प कटिंग इज कम, मतलब इट्स कमिंग इन दी फुटबॉल। तो ये सारे गेम पर डिपेंड करता है कि उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, उनका एजिलिटी ड्रिल्स क्या है। डिफरेंट मैंने बहुत सारे रिहैब प्रोग्राम में लिखा हुआ है ना, एजिलिटी ड्रिल्स अकॉर्डिंग टू दी एक्टिविटी, कि उसका पर्टिकुलर स्पोर्ट्स क्या है उसके हिसाब से उसका एजिलिटी ड्रिल्स होगा। जैसे अगर आप देखो कि अगर आपने वो मूवी देखी होगी चक दे इंडिया में, वो हॉकी के ड्रिल्स कराता है बीच में, यस मैम, आता है। वो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ड्रिल्स है, लेफ्ट राइट अकॉर्डिंग टू दी कमांड। जब वो कमांड करता है तो लेफ्ट एंड राइट विद द इक्विपमेंट, विद द सुइटेबल इक्विपमेंट, वो उनको एडुकेट कराता है, उनको लर्न कराता है। दैट इज अ काइंड ऑफ एजिलिटी ड्रिल्स अकॉर्डिंग टू दी हॉकी गेम। अगर आप बाकी क्रिकेट में देखोगे, कभी भी क्रिकेट का किसी ने भी आईपीएल लाइव देखा होगा तो वो पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं या वार्म अप में गेम खेलते हैं, उसके बाद उनका कभी हाई नी होता है, कभी सडन ट्विस्ट होता है, कभी टी ट्विस्ट होता है। वो फॉरवर्ड रनिंग है, लेफ्ट टर्न है, राइट टर्न है, देन बैकवर्ड रनिंग है। ये एक टी टेस्ट होता है, टी टेस्ट भी होता है एंड टी ड्रिल भी होता है। ये कंप्लीट एजिलिटी है। तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा गेम है, उसके हिसाब से एजिलिटी का क्या प्लान है। इसीलिए हर गेम का ट्रेनर, हर गेम का कोच, हर गेम का फिजियो अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट। सो यू कैन नॉट से कि ये एजिलिटी सिर्फ इसी गेम में करा सकते हैं, उसमें नहीं करा सकते हैं। हाँ, करा सकते हैं, बट विच वन इज बेटर साइड, वो चेक करना आपको। एंड इसके ऊपर भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, रिसर्चेस हैं, आप वो चेक कर लो, उसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि नो, दिस वन इज बेटर फॉर द हॉकी, दिस वन इज बेटर फॉर द क्रिकेट एंड दिस वन इज बेटर फॉर द फुटबॉल। तो यू कैन से, बट यू हैव टू बी प्रूव्ड। पहले आपने कहीं आर्टिकल और रिसर्च में पढ़ा हो, सो दे यू कैन गिव द रेफरेंस ऑल्सो, और अदरवाइज यू कैन से नो, आई हैव चेक दिस थिंग्स in the past 2 years or 3 years, so it is important. Okay. ओके मैम, थैंक यू सो मच। और कुछ पूछना है? यस मैम। हाँ बोलो। मैम एक स्टूडेंट है, मतलब 20 ईयर से कम एज का है, और हम्म। उससे उसके नीचे से क्रैकिंग साउंड आ रहा है करीब 6 महीने से, और कोई कोई मतलब इंजरी का कोई हिस्ट्री नहीं है। तो क्या चांसेस हो सकते हैं लिगामेंट का या कोई और? नहीं, क्या कौन सा साउंड आ रहा है? मतलब मैम जब वो एक्सटेंशन में हो रहा है, वेट बियरिंग एक्सटेंशन कर रहा है नी का, तो क्रैकिंग साउंड आ रहे हैं। ऐसा वेट लग रहा है बियरिंग जैसे नीड्स। हाँ, जैसे ओए ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं क्रैकिंग साउंड आते हैं। और एज क्या है? 20 years। बिलो 20। बिलो 20। एक्सरे करवाया है उसका? एक्चुअली नॉर्मल है। एक्सरे नॉर्मल है, कोई भी डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं है वहां पे? नहीं।
और तो फिर उसका कुछ और ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकता है, बिकॉज आजकल बहुत सारे प्लेयर्स को साउंड आता रहता है ड्यूरिंग द मूवमेंट, और एवरी जॉइंट में भी होता है, कभी कभी सिर्फ एक ही या दो ही जॉइंट में होता है। सो उसका मैम कैल्शियम लेवल और ये जो आपका विटामिन D3 है वो क्या लेवल है, बिकॉज अभी बहुत कम होता है इस एज में भी, तो एक बार वो अच्छा चेक करवा सकते हो आप। हाँ, और स्ट्रेंथ ठीक है उसका, हैमस्ट्रिंग का और क्वाड्रिसेप्स का, यस मैम स्ट्रेंथ ठीक है। और असेसमेंट में कुछ भी उसकी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैम टेस्टिंग वगैरह जैसे करते हैं तो मेडिकल जो टेस्टिंग है उसमें कोई मतलब सब नेगेटिव है। उसका ये मैकमोरेस टेस्ट किया है? यस मैम कोई खास पेन नहीं है। खास पेन नहीं है? तुम ऐसे मत बोलो खास पेन नहीं, व्हाट इज द मैम मतलब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ मतलब मैम अगर मैक्सिमम करें फोर्स लगा के बहुत ज्यादा करेंगे तब भले हल्का वो दबाने का जो पेन होता है वो पेन फील कर सकता है, लेकिन जैसे क्योंकि इससे नो पहले कभी पैल्पेशन में टेंडर नो पैल्पेशन में टेंडरनेस है? नो मैम अगर टेंडरनेस नहीं है। टेंडरनेस नहीं है, इफ यू आर टचिंग द पर्टिकुलर मसल और जॉइंट लाइन, उसमें कोई पेन नहीं है। नो मैम एक बार मैं सिंपल है। एक बार मैकमोरेस टेस्ट करो और एप्लीज टेस्ट करो, फिर मुझे ओके मैम बताना कि क्या है। और एक्यूरेट करना, मतलब ऐसे मत करना कि उसने चिल्लाना शुरू किया तो आपका फोर्स कम कर दिया आपने, ऐसे नहीं करना। एग्जैक्टली जैसे ओके एक्यूरेटली होता है वैसे ही करना है, मैकमोरेस करना और एप्लीज करना। अगर कुछ भी मेजर लिगामेंट का प्रॉब्लम होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा, अदरवाइज मस्कुलर इम्बैलेंस होगा तो उसकी स्ट्रेंथनिंग आप करा सकते हो, जैसा मतलब आपने ओके असेसमेंट किया होगा तो ठीक है, वैसे करा ओके दो। मैम आई विल टेक। ओके, थैंक यू और मैम। कुछ डाउट? ओके, और कोई डाउट, और कुछ पूछना है किसी को? चलो ठीक है, so see you on Monday at 2 o'clock, right? ओके Okay, thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.